warm welcome to all in our new session. Today, in this session, we are definitely going to discuss a new concept of business environment. In our previous classes, we have already discussed what is business environment, what is the characteristics or the qualities that possessed in the business environment which we have to consider while taking any kind of business decision, which are definitely impacting us. Us means our business directly, indirectly. Okay, and we have also discussed the importance of business environment. If you don't analyze your environment before taking any decision, then what will be the result? The result will definitely a positive or negative impact on your business, on your activities. Okay, definitely all businessmen wants that any kind of decision they take, they must get some positive results. But it is possible only if you analyze properly your environment and then accordingly take decision. But if you cannot analyze your environment, if you cannot know the factors affecting your business decision, affecting you, affecting your production, affecting your marketing, and all sorts of activity. Because as we know, in each and every financial or operational or management oriented or production oriented, purchase oriented, promotion oriented, okay, every activity definitely have a direct and indirect impact from our business environment. Okay, business environment से हमें बहुत सारा क्या मिलता है, impact आता है business के ऊपर. So हमें क्या करना है कि before taking any decision, we must consider what are the situation, what are the condition, and then accordingly, then we have to take decision. Then only it can be positive, it can provide positive result to us. Otherwise, if we don't analyze, if we know knowledge about our environment, about our surrounding, about the things, about the factors, what we call the dimensions, then what will happen? Then definitely we will lose the control over the environment and also over the business. Okay, so for that reason, we have already discussed what are the importance of business environment and analysis of business environment. Okay, now let us discuss what are the dimensions, what we call dimensions or components or factors of business environment. Those are directly, indirectly affecting our business and which we have to consider, upon which we must have complete knowledge, so that before taking any decision, we can easily analyze those things, we can easily know about those things, the future changes, the past, present, future of those factors, and then accordingly we can take appropriate decision, which will definitely provide positive result to our business. Okay, so from today and it will take definitely subsequent 2-3 classes to complete the components of business environment. So from today onwards, we are going to discuss about the factors or dimensions or components, what we call the different names of those things only. Okay, जिसको हम बोलते हैं component मतलब एक चीज किससे बनता है, by including different ingredients, जिसको हम बोलते हैं components, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं dimension मतलब different shape, size, है कि नहीं, different size, and factor जो कि हमारे business को impact करता है, जो कि business environment का एक important क्या है, constituent है, मतलब वो सब चीजों को मिला के ही अपना business environment बनता है, ठीक है. So now let us discuss those factors in detail. So students, here you can see the factors, the components or the dimensions of business environment, though we have already discussed those in detailed manner in the introduction class and in the class where we have discussed about the features of business environment. Okay, so basically we have clear idea about what are the dimensions. The dimensions are basically of two types, that is internal, one is external. Internal, the things, the factors which are within the organization. Within the organization मतलब organization के अंदर जो आता है, अंदर मतलब ले लो अपना ऑफिस ले लो और नहीं तो अपना प्रोडक्शन हाउस ले लो,
है कि नहीं। कोई कंपनी का क्या रहता है, एक ऑफिस मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस एक जगह रहता है और प्रोडक्शन हाउस एक जगह पे रहता है, तो वो दोनों को भी हम इंटरनल ही बोलेंगे, है कि नहीं। नो डाउट दो अलग अलग जगह पे हैं, बट दोनों अपने डिसीजन से ही चलता है कि नहीं। और नहीं तो कोई कंपनी का क्या रहता है, मतलब कॉर्पोरेट हाउस भी वहीं रहता है और प्रोडक्शन भी वहीं रहता है, एक ही जगह पे वो लोग सारे के सारे काम करते हैं, जो कि हमारा होता है ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, एज वी नो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ रनिंग ए बिजनेस, लाइक अवर ऑफिशियल डिपार्टमेंट रहता है जो ऑफिशियल काम होता है कि नहीं। उसके बाद प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, रिसर्च डेवलपमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस, ठीक है। ये जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारे एक जगह पे भी काम करते हैं और नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी काम करते हैं, दैट इज नॉट ए मैटर, बट सब एक ही डिसीजन के अंदर काम करते हैं, सब एक ही मैनेजमेंट टीम के अंदर काम करते हैं, सब एक ही ऑर्डर के अंदर काम करते हैं। मतलब टॉप लेवल जो ऑर्डर देगा वो सारे के सारे फॉलो करेंगे उसको, ठीक है कि नहीं। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल। क्यों बोलते हैं इंटरनल? इंटरनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारा अपना है, अपने अंदर है, ठीक है कि नहीं। जैसे अपने बॉडी ऑर्गन इंटरनल, इंटरनल मतलब जो अंदर है वो टोटली हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि वो अच्छे रहेंगे कि खराब रहेगा वो टोटली डिपेंड अपॉन अस, आवर एक्टिविटी, आवर डेली हैबिट, आवर डाइट, okay, our activities like what we eat, okay, how we control our days, how we control our diets, okay, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट्स कितना अच्छा रहेगा। सो वैसे ही जो इंटरनल फैक्टर होते हैं दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको मतलब पूरा उसके कंट्रोल में, इसमें क्या करना है क्या नहीं, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इंपैक्ट क्या रहेगा, वो सारे के सारे मैनेजमेंट टीम के अंदर रहता है और जिसको हम बोलते हैं बिजनेस के अंडर रहता है कि नहीं। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपको देख रहे हैं इसमें आता है अपना कल्चर। कल्चर मतलब आप लोग देखे होंगे ना कि दिवाली टू दिवाली सेलिब्रेशन होता है और नहीं तो बोनस दिया जाता है और नहीं तो उन लोगों का जो पूजा रहता है वो टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है। उन लोगों का पहनने का, खाने का, पीने का, ठीक है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो रहता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखोगे तो वो लोग एक कल्चर को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली वो ओनर, कंपनी का ओनर और टॉप मैनेजमेंट जो भी कम्युनिटी का होगा बस वो वही चीजों को फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे आल्सो आस्क देयर एम्प्लॉइज एंड ऑल द ह्यूमन रिसोर्स टू फॉलो दोज कल्चर्स because of they believe that because of those cultures they are reaching from here to there. That's why they are following their culture. As we all know, we are definitely following our own culture because we have trust, we have confidence about the culture कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है उसको नहीं मानते हैं, अच्छा है हम उसको मानते हैं, इसमें हमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है, तो डेफिनेटली वी शुड फॉलो। सो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी कल्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी है अपना मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव। हमारा मिशन क्या है, मिशन मतलब सेम उसी को बोलते हैं, है कि नहीं। अपना प्लान क्या है, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, क्या करना है, कब तक करना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। ये सारे चीजें जो हमने पढ़ा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव में वो सारे के सारे मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव बस उसी को बोलते हैं। देन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहता है क्या। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब जो हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, द हायरार्की, है कि नहीं, उसका और रेस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी का, है कि नहीं, और काम कैसे होता है, मतलब लेआउट क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, ये सब चीजों को जो हम बोलते हैं आवर स्ट्रक्चर, है कि नहीं। मतलब जो बिजनेस का साइज, नेचर, टाइप, है कि नहीं, लेआउट और मतलब पावर कैसे फ्लो होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होता है, टॉप अथॉरिटी में कौन है, हायरार्की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से जगह पे क्या है, दोज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन आता है अपने एम्प्लॉय जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स और द एम्प्लॉइज। ये हमारे डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल पर्संस हैं, हम जो भी करते हैं इनके वजह से ही करते हैं और हमें जो भी मिलता है हम इन्हीं से प्राइमरीली शेयर करते हैं, है कि नहीं। सो अपने कंपनी में कुछ अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, अच्छा चीजें, बुरा चीजें, सब इन लोगों को पता रहता है और ये भी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं। हमारे सीक्रेट्स सब ये लोग क्या अपने अंदर ही रखते हैं, बाहर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि कंपनी अगर मतलब गेन करेगा, कंपनी अगर बड़ा होगा, ग्रो करेगा, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, डेफिनेटली इन लोगों को मिलेगा। तो इनको भी चाहिए कि हमें भी कुछ बेनिफिट चाहिए, है कि नहीं, मिलना चाहिए। तो ये लोग क्या कॉन्फिडेंटली हर एक काम कंपनी के लिए डेडिकेटली काम करते हैं, इसलिए हम इन लोगों को भी इंटरनल फैक्टर में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना गुडविल और ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। देखो आप लोग
लोग देखोगे कि सर गुडविल तो ये हमारे बाहर से मिलता है, नो, बाहर से मिलता है, बट व्हाट आवर गुडविल इज टोटली डिपेंड अपॉन आवर ओन एक्टिविटी, है कि नहीं? अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा गुड नेम आएगा, हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में, कस्टमर्स हमें पसंद करेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे, पब्लिक हमें पसंद करेंगे, है कि नहीं? सो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन अस, आवर एक्टिविटी, आवर पॉलिसी, आवर प्लान, आवर ऑब्जेक्टिव्स, है कि नहीं? अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा अच्छा नाम आएगा, अगर हम बुरा काम करेंगे, कंपनी को डुबा देंगे, अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट सेव नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, सो देयर विल बी नो गुडविल, है कि नहीं? गुडविल मतलब गुड नेम ओनली, बैड नेम को गुडविल नहीं बोलते हैं, गुडविल मतलब गुड नेम, तो हमारा गुड नेम है, दैट मींस दैट इज आवर गुडविल, दैट इज आवर ब्रांड नेम, बाहर बहुत फेमस है हम, है कि नहीं? अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारा गुडविल नहीं होगा, ठीक है? तो इसीलिए ये जो गुडविल है ना, गुडविल को हम इंटरनल फैक्टर में लेते हैं, क्योंकि द गुडविल इज टोटली डिपेंड अपॉन आवर ओन एक्टिविटी, व्हाट वी डू दैट इज ओनली रिफ्लेक्टेड आउटसाइड इन द सेंस ऑफ गुडविल, ठीक है? द ब्रांड नेम जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट आर ए पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, है कि नहीं? वो प्रोडक्शन ले लो, परचेज ले लो, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, बाकी जितने भी हैं सारे डिपार्टमेंट हमारे। और बाकी होता है मैनेजमेंट टीम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट टीम मतलब टॉप मैनेजमेंट क्या है, ठीक है? अपने डायरेक्टर्स, चेयरमैन, की पर्सन, है कि नहीं? सीईओ, देखिए फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल हेड, ठीक है? और कंट्रोल में कौन कौन है, कंट्रोल हेड, ठीक है कि नहीं? जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा मैनेजमेंट टीम, और अपना मैनेजर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, ये जो है अपना मैनेजमेंट टीम जो हमने पढ़ा है मैनेजमेंट ने, ठीक है? टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सारे के सारे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट टीम, ये सब आते हैं अपने किसमें? इंटरनल फैक्टर में आते हैं, और जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो और एक चीज हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स की बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हम बेसिकली वी ओनली कंसीडर द एक्सटर्नल फैक्टर, व्हाई? देयर इज अ रीजन, बिकॉज the things which are under our control, clear, we should not give extra effort, we should not give extra concentration upon those things because they are directly indirectly within our control, ठीक है? तो वो लोग हमारे कंट्रोल में हैं, इसलिए हम वो चीजों को, ये जो चीजें हैं ना हमारे कंट्रोल में, इसलिए ये चीज को हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसीडर नहीं करते। बट आप लोग देखोगे कि एक डेफिनेशन में आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द थिंग्स, द फैक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट द बिजनेस एंड विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल से बाहर जाता है उसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो चीजों को ही ज्यादा फोकस आपको देना है। उसमें क्या आता है? उसमें बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है कि नहीं? तो वो हो गया प्राइमरी जो इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है? जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो, है कि नहीं? माइक्रो मैक्रो दोनों हमने पढ़ा था। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक इंपैक्ट, जिसका की इंपैक्ट रहता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ओनली, और वो जो चीजें हैं कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ, नॉट की टोटली 20-30% दे आर विद इन आवर कंट्रोल। आवर कंट्रोल मतलब बिजनेस के कंट्रोल में रहता है, कुछ कुछ, नॉट की कंप्लीटली, समहाउ दे आर विद इन आवर कंट्रोल। द माइक्रो फैक्टर्स are within somehow the control, under the control of the business, because business can motivate, business can remodule, business can attract, business can what we can say, they can change their mind, they can change their mind with their impact, ठीक है, with their special effort, with their special bonus, with their special attention, है कि नहीं? उसके साथ हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इस चीज को बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो इंपैक्ट रहता है हर एक कंपनी के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है? अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, टेक्सटाइल में वेरियस कंपनी है, तो सबके ऊपर माइक्रो फैक्टर इक्वल नहीं रहता है, बिकॉज सी माई कस्टमर हैव ए इंपैक्ट ऑन मी, बट वही इंपैक्ट दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा डेफिनेटली। तो ये जो है ना, जो सप्लायर, कस्टमर, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट, ये सब हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो कि फ्यूचर टाइम पे कॉम्पिटिटर कौन है, अपने इन्वेस्टर, अपने पब्लिक मतलब ताकि लोकल पब्लिक जो भी है, ठीक है? ये सब ना हमारे कुछ कुछ एक्टिविटी से अगर हम इन लोगों को बोनस देंगे, कंपनसेशन देंगे, कुछ लॉस हो गया अगर, ठीक है, इन लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अच्छा प्रमोशन करेंगे, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, है कि नहीं, कुछ अच्छा चांस देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, तो ये लोग हमारे कंट्रोल में डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे, ठीक है? और इनका जो इंपैक्ट रहता है
स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक टू ए ऑर्गेनाइजेशन, टू ए बिजनेस यूनिट, स्पेसिफिक रहता है, हर किसी के ऊपर अलग अलग रहता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूं, ठीक है, आई एम ए कस्टमर, आई हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फीलिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, यस और नो। फॉर सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू परचेज माई ग्रोसरी आइटम, ओके, मैं एक दुकान पे जाता हूं और एक ब्रांड वैल्यू को मतलब उसको यूज करता हूं, ठीक है, सो आई हैव ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रोसरी आइटम जो बेचता है वो जो ग्रोसरी ब्रांड, ठीक है, उसके ऊपर अलग रहता है। बट वही जो ग्रोसरी के ऊपर जो मेरा इंपैक्ट है, जो मेरा अट्रैक्शन है और जो मेरा इंपैक्ट है, ठीक है, वो सेम फूड के ऊपर नहीं रहेगा। डेफिनेटली फूड के ऊपर कुछ अलग रह सकता है, आ रहा है ना समझ में? तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रो, जो कि माइक्रो फैक्टर मतलब स्पेसिफिक मतलब ये लोग जो हैं इंपैक्ट डालते हैं, अलग अलग कंपनी को अलग अलग टाइप का इंपैक्ट डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक मतलब सेपरेट, ओके, और इंडिविजुअली डालते हैं, इंडिविजुअल। इन लोगों का इंपैक्ट ग्रुप वे में नहीं जाता है। ग्रुप वे में मतलब एक कस्टमर का इंपैक्ट सारे इंडस्ट्री के लिए इक्वल नहीं होता है, इसके लिए कुछ, उसके लिए कुछ, उसके लिए कुछ। लाइक आई एम ए कस्टमर, ओके, आई हैव ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ए ब्रांड ए, नेगेटिव टुवर्ड्स बी एंड न्यूट्रल टुवर्ड्स सी। ये हो गया ना, अलग अलग हो गया ना इंडिविजुअली। बट क्लियर ये आ गया, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअली। मेरा ए के ऊपर अलग है, बी के ऊपर अलग है, सी के ऊपर अलग है, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं कस्टमर हूं, पॉजिटिव मतलब तीनों के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब तीनों के ऊपर नेगेटिव, न्यूट्रल मतलब तीनों के ऊपर न्यूट्रल। ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। मेरा सबके साथ अलग अलग इक्वेशन है, जो जैसा मुझे मतलब प्रायोरिटी देता है, जो जैसा मुझे प्रोडक्ट देता है, जो जैसा मुझे सेटिस्फेक्शन करता है, उसके हिसाब से मेरा उनके ऊपर वैसा ही इंपैक्ट रहता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं माइक्रो फैक्टर्स, ठीक है, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओके। और जिसको अलग नाम भी है स्पेसिफिक फैक्टर और इंडिविजुअल इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है। बाकी द नेक्स्ट वन रहता है कि अपना मैक्रो फैक्टर। मैक्रो फैक्टर को स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे अपने टेक्स्ट बुक में, जो कंपोनेंट्स में द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द डायमेंशन, द फैक्टर में आप लोगों को दिखेगा कि मैक्रो फैक्टर ही वो दिया है, बाकी फैक्टर्स को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? बिकॉज मैंने जिससे बोल दिया आपको रीजन कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हम बेसिकली डिफिनेशन में भी कंसीडर किया गया है द फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बियॉन्ड बिजनेस कंट्रोल, उसी को हम मैक्रो फैक्टर मतलब उसी को हम बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर और डायमेंशन के रूप में कंसीडर करते हैं। और मैक्रो फैक्टर वैसा है कि जो टोटली हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर कुछ काम करते हैं तो ये लोग हमारे जैसे कुछ चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ कंसीडर कर लेंगे। बट मैक्रो फैक्टर एक ऐसा है, इनके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। जो मैंने बोला, बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन यू शुड कंसीडर योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब नो डाउट वी शुड कंसीडर ऑल इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग, बट वी मस्ट फोकस मैक्सिमम अपॉन द मैक्रो फैक्टर्स। क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये हमारे हिसाब से काम नहीं करते, ये हमारे हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करते, ये हमारे हिसाब से डायनेमिकली चेंज नहीं होते, ये अपने हिसाब से चेंज होते हैं। मार्केट सिचुएशन, एनवायरमेंट, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एंड नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने देखा ग्लोबल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि अभी आया था नेचुरल मतलब जो पैंडेमिक सिचुएशन आ जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स ईच एंड एवरी फैक्टर चेंज। हमारा प्लान क्या था? डेफिनेटली 2020 में आप लोगों का ऐसा थोड़ी ना प्लान था कि दिन भर खाएंगे, सोएंगे, टीवी देखेंगे, मजा करेंगे विदाउट एनी एक्टिविटी। ऐसा प्लान था किसी का भी? किसी का भी नहीं था। डेफिनेटली सब लोग अच्छा अच्छा प्लान किए थे कि 20 में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बिजनेस में नया ब्रांच ओपन करूंगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, और नहीं तो स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव था कि हाँ मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं जॉब पाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये एक्सप्लोर करूंगा, है कि नहीं? सबका अलग अलग प्लान था। बट बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल पैंडेमिक सिचुएशन सबका प्लान पूरा बर्बाद हो गया, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से हम लोगों का पूरा लाइफ चेंज हो गया, है कि नहीं? वैसे ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे, देखो अभी चल रहा है कहीं कहीं पे, अगर यूएस का ले लो, यूएस का अभी इलेक्शन चल रहा है, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि यूएस इज ए वेरी गुड फ्रेंड टू इंडिया। तो उसके हिसाब से ही मतलब डिफर करेगा कि इंडिया में वो जो ट्रेड, क्लियर, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन आवर मतलब द पॉलिटिकल टीम और द विनर, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस।
सो उसके हिसाब से भी हमारे ऊपर इंपैक्ट आता है कि नहीं। अगर कोई एक अगर पॉजिटिव लोग आ गया जो हमारे सपोर्ट में, तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई ऐसा आ गया जो कि इंडिया के खिलाफ है कि नहीं, तो हमें नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। सो दैट इज ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे देखो आप, ठीक है कि नहीं, अपग्रेड होता जाता है, अपग्रेड होने की वजह से हमें भी इंपैक्ट आ जाता है कि नहीं। वैसे हमारा इकोनॉमी मतलब जैसे कि अभी देखो इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया था, है कि नहीं, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन पूरा इकोनॉमी जीरो हो गया था, हम नेगेटिव में, जीरो तो नहीं नेगेटिव में चले गए थे, है कि नहीं। तो पॉलिटिकल टीम जैसे आप देखोगे बीजेपी बीजेडी, है कि नहीं, और नहीं तो कांग्रेस, ये सब चीजों का जब अप डाउन होता गया उसका इंपैक्ट डेफिनेटली हमारे ऊपर आता है। ठीक है, देन लीगल मतलब जो कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे पहले हम लोग जब बाइक चलाते थे, कार चलाते थे, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट को लेके, ट्रैफिक को लेते, हम लोग पूरा केयरलेस थे, जैसे अपना मन करे वो चलाते थे, क्योंकि मतलब फाइन सिस्टम ऐसा अच्छा नहीं था और रूल इतने अच्छे नहीं थे। बट जैसे लीगल एनवायरमेंट में कुछ लॉ आ गया ट्रैफिक को लेके, तो सारे लोग पूरा स्ट्रिक्ट हो गए। अभी बाहर, घर से बाहर निकलो तो हेलमेट पहन के जाओ, अपना जो भी है डॉक्यूमेंट सब पास में लेके जाओ, ठीक है, नहीं तो फाइन आ जाएगा, है कि नहीं। तो वो सिस्टम आ गया। और बाकी तो डिफरेंट जगह में अभी क्या हो गया, पहले लगा था, बट अभी फेज वाइज सब डिफरेंट जगह में क्या हो गया कि सीसीटीवी भी लग गया। मतलब अभी ये डर नहीं है कि चलो पुलिस ने देख लिया फाइन आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो कैमरे के आगे आ गए तो फाइन आ गया, है कि नहीं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, खुद से खुद डरो, क्योंकि कैमरा जो हम बोलते हैं ना था, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, कैमरा सब देख रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला है नहीं है, देखेगा नहीं देखेगा, फाइन काटेगा नहीं काटेगा, क्योंकि कैमरा में आ गया तो डेफिनेटली फाइन कट जाएगा, है कि नहीं। तो वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल कुछ चेंज हुआ तो हमारा पूरा का पूरा एक्टिविटी चेंज हो गया अभी, है कि नहीं। नाउ कल्चर वैसे ही जो हमारे एनवायरमेंट का, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हम जो एरिया में कंट्रोल करते हैं उसका एनवायरमेंट, और सोसाइटी जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जो वहां पे क्या क्या है क्या नहीं, ये जो सारे चीजें है ना, ये सारे चीजों के हिसाब से ही बिजनेस अपना डिसीजन लेता है। बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डेफिनेटली कंसिडर दोस थिंग्स डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एंड 100%, बिकॉज इसी के हिसाब से हमारा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूरा का पूरा उलट पलट हो जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो स्टूडेंट्स, ये चीजों को ही हम बोलते हैं डायरेक्टली द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बट इन द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी आर कंसीडरिंग ऑल ऑफ दोज इन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट है, बट सबका कुछ अलग अलग इंपैक्ट रहता है बिजनेस के ऊपर, इसलिए वी शुड कंसीडर ऑल। ठीक है, जब भी आपको मतलब कंपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सो डेफिनेटली यू शुड राइट द ऑल थिंग्स, दैट इज इंटरनल, एक्सटर्नल एंड माइक्रो, मैक्रो, एवरीथिंग। ओके, क्लियर। सो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, अब जो एक दो क्लास लगेगा, ये क्लास में हम ये जो कंपोनेंट्स को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल्चरल, लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब चीजों में क्या होता है, कैसा होता है, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट कैसा आता है। बाय गिविंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू सॉल्व those things, we are going to elaborate those things in a detailed manner, so that it will take definitely 2 or 3 classes. So in 2-3 classes we are going to complete our components or dimensions of business environment. Okay, clear, आ गया समझ में। So students, आज हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट को आज हम डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर then our subsequent classes will definitely discuss the micro and macro factor, that is the external factor. Okay, so as you can see, the internal factor consists of these things. Okay, ये जो अपना जो इंटरनल फैक्टर, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ये चीजों को कंसीडर करता है, जो कि है अपना कल्चर, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, द स्ट्रक्चर, द एम्प्लॉइज, गुडविल और ब्रांड नेम, डिपार्टमेंट्स एंड द मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो ये सब क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कि अपना जो कल्चर मतलब क्या स्टूडेंट, कल्चर मतलब जो हम बोलते हैं कि डेफिनेटली हमारे कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो पर्सन्स हैं, द प्रोप्राइटर ले लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले लो, सीईओ ले लो, और जो भी हमारे कंपनी में जो लोग अपना अपना काम करवाते हैं, द लीडर्स, व्हाट वी कॉल से द लीडर्स, जो लीडर और जो ओनर जो होते हैं ना, डेफिनेटली उन लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ठीक है कि नहीं, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लाइक व्हाट दे बिलीव, देयर बिलीव्स, ओके, देयर बिलीव्स, ओके, देयर ट्रेडिशन, वो कौन से ट्रेडिशन को बिलोंग्स करते हैं, ठीक है,
their communal पैटर्न, ठीक है, कम्युनल उन लोगों को काम करने का तरीका कैसे रहता है, ठीक है, देयर बिलीफ, देयर ट्रेडिशन, ओके, एंड देयर व्हाट वी से परसेप्शन, ओके, देयर परसेप्शन, देन काइंडनेस, ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, तो ये जो अपने कंपनी में जो भी होते हैं टॉप लेवल मतलब जो लीडर्स, वो लोग क्या बिलीव करते हैं, उन लोगों का बिलीव क्या है, उन लोगों का ट्रेडिशन क्या है, उन लोगों का मतलब कम्युनल पैटर्न क्या है, वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, उनको खाने का, पहनने का, रहने का, ठीक है, ये सब उन लोगों का एक एक परसेप्शन रहता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी के हिसाब से वो चाहते हैं कि हमारे कंपनी में ये सब चीजों के लिए ही हम ये पोजीशन में आए हैं, ठीक है, तो हम ये फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हमारे साथ साथ जो भी काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे भी ये सब चीजों को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, ठीक है, उन लोगों का एक मतलब ये सब चीजों को, ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर एक रूल बन जाता है कि नहीं, कल्चरल एक रूल बन जाता है, विच एवरी एम्प्लॉई हैज टू फॉलो, ये जो है ना, लाइक उनका जो पहनने का तरीका है कि नहीं, आप मतलब फॉर्मल पहन के आओगे कि क्या पहन के आओगे, ठीक है, आप कैसा खाओगे, लाइक कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे कि नॉनवेज उन लोगों को खाने के लिए नहीं देते हैं, कोई कोई नॉनवेज खाने के लिए देते हैं, कोई कोई खाने का बहुत रेस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है ना, तो ये सब बोलते हैं ना कि वो लोग जो जो मतलब फॉलो करते हैं अपने खुद के लाइफ में, वो लोग चाहते हैं कि हमारे कंपनी में भी जो लोग काम करते हैं वो लोग भी वो चीजों को फॉलो करे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, हमारे कंपनी का एक्टिविटीज, ओके, एक्टिविटीज, आवर पॉलिसीज, ठीक, एंड आवर प्लान्स, आवर रूल्स, ये सब चीजों भी, एंड आवर फोकस, किस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, ये सब चीज भी उसके हिसाब से चेंज हो जाता है कि नहीं, सो डेफिनेटली ये जो कल्चर है अपना, जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रहता है, कोई भी किसी के साथ इक्वल नहीं खाता है, जैसे कि नॉर्थ में कल्चर अलग है, साउथ में कल्चर अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है कि नहीं, अगर आप वेस्ट में कोई कंपनी में जाओगे काम करने के लिए तो उनका कल्चर अलग रहता है उनके कंपनी का, अगर वेस्ट से अपना आप डायरेक्टली अगर नॉर्थ में चले गए तो आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कल्चर पूरा का पूरा डिफरेंट रहता है, ठीक है कि नहीं, तो द कल्चर मीन्स द बिलीफ, द ट्रेडिशन, द पैटर्न, okay, the perception, what the top leader feel, what they follow, and accordingly they are also ask their employee, they also put is like a rules, you have to follow those things for the growth, for the benefit, for the positive internal activity, clear, of our organization, ठीक है, तो वो चीज डेफिनेटली एक रहता है, और ये जो चीज डेफिनेटली किसी बाहर से नहीं आ रहा है, डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजर हैं, ठीक है, जो लीडर्स हैं वही ये चीज को फॉलो कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वी डेफिनेटली कंसीडर इट इज ए इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड डेफिनेटली दीज आर आवर कंट्रोल, है कि नहीं, कि सोचो को एक लीडर था, वो लीडर अगर मर जाता है उसके बाद में और कोई आता है तो वो समाव कुछ कुछ रूल को चेंज करवा देता है कि नहीं, सो ये जो कल्चर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन हु आर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, क्लियर, दैट इज द कल्चरल thing, the culture, the factor what we have to consider as a environmental factor, and those are definitely impact our organization, है कि नहीं, क्लियर, ये कल्चर के वजह से भी कई बार एम्प्लॉयज को भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि आप अगर वेस्ट में काम कर रहे हो, है कि नहीं, आप अगर सोचो कि आप अगर साउथ जोन में काम कर रहे हो, अगर इमीडिएटली आपको नॉर्थ जोन में ट्रांसफर हो गया, है कि नहीं, तो क्या होगा, आपको इमीडिएटली जाते जाते आपको तबीयत खराब हो जाएगा, हाँ कि नहीं, आपका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका कल्चर जो था, सोचो कि ये लोग मतलब वेजिटेरियन थे, इन लोगों का खाने का, इन लोगों का क्लाइमेट, इन लोगों का टाइमिंग, इन लोगों का ट्रीटमेंट सब अलग था, आप अगर नॉर्थ में चले जाओगे तो उन लोगों का क्या रहता है कि उन लोगों का खाने का पैटर्न अलग रहता है, वो लोग मोस्टली नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन लोगों का काम करने का तरीका अलग रहता है, वहाँ का क्लाइमेट अलग रहता है कि नहीं, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो इसके हिसाब से आपको तबीयत डेफिनेटली खराब होगा, तो इसके वजह से आपको भी इंपैक्ट आता है कि नहीं, क्लियर, आ गया समझ में, सो नेक्स्ट इज आवर मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट को अगर हम डिस्कस करेंगे तो व्हाट इज मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव मींस आवर प्लान, जो कि होता है आवर प्लान्स,
okay, our policies, our rules, okay, plan, policy, rules, clear, our objectives, वही है अपना एम, क्लियर। तो ये जो चीजें होता है ना, डेफिनेटली क्या होता है कि हम किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, व्हाट विल बी, मतलब कौन से कस्टमर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, व्हाट विल बी आवर फोकस एरिया, कौन अपना सप्लायर को हम फोकस करेंगे, गवर्नमेंट के साथ अपना डील कैसे करेंगे, है कि नहीं, ये जो रहता है ना अपनी कंपनी का प्लान, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, ये जो सारे चीजें डेफिनेटली हमारे मतलब हम अपने एम्प्लॉयज के वर्किंग को, अपने रिसोर्सेस के वर्किंग को, और अपने डेफिनेटली अपने एरिया में हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे चीजों को डेफिनेटली इंपैक्ट करता है कि नहीं। जैसे कि कई कई कंपनी का रहता है, ठीक है, कि हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हम जो सेक्टर में हैं वो सेक्टर में हम कैसे टॉप लेवल में पहुंचे, बस उन लोगों का फोकस वहीं पर रहता है और उसी के हिसाब से वो लोग हमेशा काम करते रहते हैं, है कि नहीं। जैसे और भी रहता है, देखो देखो, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो अमूल, अगर हम लेंगे अमूल का, तो अमूल जो सबसे पहले बना था, अमूल जो गुजरात का एक मतलब बहुत ही एक छोटा सा मतलब छोटा सा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब देखिए हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो लोग ने वो चीज को बनाया था सेल्फ हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, ताकि क्या कि जो जो लोगों को मतलब जो जो लोगों के पास मिल्क है वो लोग अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं एक जगह पे लाएंगे और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इक्वल वे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि सबको इक्वली बेनिफिट मिलेगा, सब इक्वली कुछ कुछ पाएंगे। बट धीरे धीरे उन लोगों का ऑब्जेक्टिव ऐसा बना कि चलो ये जो मींस द गिविंग बेनिफिट ना, जो हम पहले मतलब कम लोगों को देते थे अभी और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और वो स्टेट से बाहर गए, क्लियर, स्टेट से बाहर जाके अभी नेशन, पूरा नेशन वाइड में ऐसा कहीं भी कोई भी जगह नहीं है जहां पे अमूल कंपनी का नाम नहीं है ऐसा कोई नहीं। तो क्या हुआ, उनका ऑब्जेक्टिव को वो फॉलो करते 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 वो ग्रोथ करते गए। तो उन लोगों का फोकस वहीं पर रहता है कि हम कैसे लोगों को कैसे मतलब बिलीव, ठीक है, मतलब वैल्यू एडेड चीजें कैसे हम प्रोवाइड करें, ठीक है। वैसे और भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का रहता है कि हम कैसे वर्ल्ड लेवल में अपना कंपनी का नाम बनाए। जैसे कि आप देखे होंगे कि रनबैक्सी, ठीक है, रनबैक्सी एक कंपनी है जो कि क्या होता है कि उसका एक टारगेट था कि रिसर्च फील्ड में, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हम कैसे टॉप लीडर बन पाए। नाउ सी यू कैन सी ना रनबैक्सी अब एक मतलब एक ब्रांड कंपनी है जो कि पूरा नेशनल ग्लोबल वे में भी वो फेमस है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली वी आर डेफिनेटली फॉलोइंग आवर प्लान, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, हम क्या काम करेंगे, हम कैसा करेंगे, कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, क्या कौन क्या करेगा, दैट इज डेफिनेटली डिपेंड अपॉन अदर प्लान, पॉलिसी, रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम, clear, those are constructed, those are created by our management, those are created by our business team, ठीक है। तो ये चीज भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में जाता है और ये चीज भी डेफिनेटली हमारे डे टू डे लाइफ को और एम्प्लॉयज के एक्टिविटीज को इंपैक्ट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे देन द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। जो मैंने बोला कि स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर मतलब जो हम बोल सकते हैं द हायरार्की, ओके, हायरार्की मतलब पावर का, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है द हायरार्की के बारे में, है कि नहीं, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, बस उसी को हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पावर अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे जो लोग काम करेंगे उन लोगों का रिलेशन किसके साथ कितना होगा, किसके पास कितना पावर होगा, किसके पास कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कौन क्या काम करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द एम्प्लॉयज, ओके, और द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली इंपैक्टेड, है कि नहीं। अगर सोचो कि टॉप लेवल जो बोलेगा वही काम सबको करना पड़ेगा, लोअर लेवल में जो भी होगा वही फीडबैक जाएगा, तो फीडबैक के हिसाब से भी बड़े कभी कभी कंपनी को अपना पॉलिसी चेंज करवाना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि लोगों ले लो कि फीडबैक आएगा कि सर ये जो आपने जो तरीका ढूंढा है, जो मेथड इज टोटली रबिश, ये टोटली काम नहीं करता है, तो डेफिनेटली टॉप लेवल क्या सोचेगा कि हाँ ये अगर काम नहीं करता है तो हमें इसको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। सो द हायरार्की, है कि नहीं, द स्ट्रक्चर, द हायरार्की, क्लियर, ये कभी कभी कॉम्प्लेक्स होता है, ये कभी कभी सिंपल होता है कि नहीं। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है कि नहीं, जिसमें आता है क्या अपनी दी पोजिशनल हेड, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको फॉलो करेगा, ठीक है कि नहीं, ये। और दूसरा रहता है काम करने का भी रहता है स्ट्रक्चर, मतलब जो हम बोलते हैं क्या पावर स्ट्रक्चर हो गया,
फिर आवर वर्किंग के हिसाब से भी रहता है, जो कि हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब काम को डिवाइड करते हैं, है कि नहीं, जिसमें हम बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, है कि नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क, एंड देन असाइन वर्क टू द स्पेशलिस्ट, है कि नहीं। वर्क का भी एक स्ट्रक्चर रहता है कि हम काम को कैसे करेंगे, सिंपल वे में करेंगे कि कॉम्प्लेक्स वे में करेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब आप ही को, मुझे ही सारा का सारा काम दिया जाएगा, है कि नहीं। मतलब सोचो कि मुझे ये पेन प्रोडक्शन करना है, तो मुझे बोलेंगे कि ये पेन का मटेरियल भी मुझे खरीदना है, ये पेन को डिजाइन भी मुझे करना है, सब कुछ इसमें जो जो है सब कुछ मुझे करना है, तो वो गया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो सारे चीजों में मैं क्या स्पेशलिस्ट नहीं हूं। बट और बोलेंगे कि नहीं आप इंडिविजुअली करो, ठीक है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल वे में, तो वो सिंपल वे में किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स वे में किया जाता है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव, आपका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। ये तो कंपनी में क्या किया जाता है, आपका स्ट्रक्चर, जो वर्किंग स्ट्रक्चर को भी आप बदल देते हैं कि वर्क को डिवीजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि जो जो एंड देन असाइन द वर्क टू द स्पेशलिस्ट, जो जो काम में स्पेशलाइज है, एक्सपर्ट है, उसको वो काम दो ताकि वो अच्छे से कर पाएगा विदाउट एनी वेस्टेज डैमेज, तो काम हमें परफेक्टली मिलेगा, अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, है कि नहीं। बस उसी को हम बोलते हैं अपना स्ट्रक्चर। दैट मीन द स्ट्रक्चर मतलब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द बिल्डिंग स्ट्रक्चर हम ये भी बोलते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो क्या होता है, द लेआउट, ओके, द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, द साइज, नेचर, लेआउट, ये सब चीजें भी हमारे जाते हैं कि स्ट्रक्चर में, कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या लेआउट हम फॉलो कर रहे हैं, सिंपल लेआउट मतलब कॉम्प्लेक्स लेआउट, ठीक है, और क्या हम कैसे कंपनी में काम करते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं, और नहीं तो ऐसे ही हापाजाइटली प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी साइज अपना क्या है, क्लियर, स्मॉल, माइक्रो की, मीडियम की, लार्ज, ठीक है, नेचर क्या है, हम कौन से प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर। सो ऑल दोस थिंग्स आर नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट डालता है कि नहीं। अगर अपना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स वन हो तो एम्प्लॉयज को समझने में तकलीफ होगी, कस्टमर्स भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, पब्लिक भी नहीं समझ पाएगी, गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाएगी। तो अगर आप एक चीज को नहीं समझ पाते तो उसके ऊपर आपका परसेप्शन क्या आता है, डेफिनेटली रॉन्ग परसेप्शन आता है, मतलब आप क्लियरली उसको नहीं समझ पाते, है कि नहीं। अगर आप एक चीज को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो उसके ऊपर आप क्या प्रेडिक्शन करोगे कि हाँ होगा कुछ, बिकॉज आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। बट अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर है तो आप उसको अच्छे से समझ जाओगे, तो यू स्टार्ट बिलीविंग दोस थिंग्स, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग अपॉन देम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी एक रहता है, अगर आपका स्ट्रक्चर सिंपल है तो सारे के सारे लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, बिलीव करेंगे। अगर नहीं है तो दे मे नॉट फॉलो बिकॉज दे हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आगे समझ में। तो बस ये चीज को हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर, ओके। तो स्ट्रक्चर भी होता है अपना एक एनवायरमेंट, एंड ये भी हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्लियर। बट दीज आर डेफिनेटली विद इन आवर कंट्रोल, क्लियर, क्योंकि स्ट्रक्चर सिंपल करना है कि कॉम्प्लेक्स करना है, दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द बिजनेस इटसेल्फ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है अपना एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब क्या, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ओके, अपने ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन आता है, तो ह्यूमन रिसोर्स को जो काम होता है बस वही होता है यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब द पर्सन दे आर वर्किंग अपॉन अस, वर्किंग विद अस, ठीक है, जो कि होते हैं क्या, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं। द एटीट्यूड, क्लियर, द एटीट्यूड ऑफ द वर्कफोर्स मतलब हमारे कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंशियल लेवल क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, और उनका बिहेवियर क्या है, क्लियर, और उनका स्किल क्या है, प्रोफेशनलिज्म, क्लियर, वो कितने प्रोफेशनल हैं, कितने स्किल्ड हैं, ओके, और कितने कॉन्फिडेंशियल हैं, मतलब हमारे काम को कितने मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कितने ट्रस्टवर्दी, क्लियर, कितने ट्रस्टवर्दी, कितने मोटिवेटिंग मतलब उन लोगों को अगर मोटिवेशन फैक्टर कुछ दिया जाता है तो वो मोटिवेट होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें होते हैं ये भी हमारे कंपनी के ऊपर बहुत ही इंपैक्ट डालता है, और इसी के लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम मतलब जो आपको पता है कि एचआर एक डिपार्टमेंट होता है कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट रहता है जिसका काम होता है क्या, कि कैसे एक अच्छी कंपनी मतलब कंपनी में हमारे अच्छे लोग को क्या करें, उनको रिक्रूट करें, है कि नहीं, जो कि आपको पता है द रिक्रूटमेंट, द सिलेक्शन,
ओके, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, किसको कौन से जगह पे अपॉइंट करना है, ठीक है। देन क्या होता है, द प्रमोशन, द डिमोशन, प्रमोशन और नहीं तो डिमोशन, किसका कितना सैलरी कितना होगा, है कि नहीं, किसको क्या एम्यूनिटीज मिलेंगे, एम्यूनिटीज मतलब फायदा, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव्स, क्लियर। ये सारे चीजें किसको कितना मिलेगा, किसको कैसे मोटिवेट करेंगे, है कि नहीं, किसको क्या पोजीशन देंगे, ये सारे के सारे एचआर डिपार्टमेंट फॉलो करता है और उसी को लेके एम्प्लॉयज को ही लेके। तो यहाँ पे और भी चीजें मतलब व्हेन वी आर रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, ठीक है, और भी आता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो सारे चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन कि हमारे जो एम्प्लॉय कितने कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब हमारे टास्क को कितने वो लोग सीक्रेट मेंटेन करते हैं, क्योंकि सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो उनका एटीट्यूड क्या है, और वेदर वी दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स आवर ओनर्स, टुवर्ड्स द लीडर, टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि एटीट्यूड के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है कि नहीं। बिहेवियर उन लोगों का कैसा है, मतलब उनका खाना पीना, रहना, जीना, ठीक है, थिंग्स को एक्सेप्ट करना, वो क्या रहता है, उनका स्किल क्या है, क्योंकि स्किल के हिसाब से हम उन लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन लोगों को काम देते हैं, क्लियर। देन प्रोफेशनलिज्म, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर वर्क और दे आर मिक्सिंग थिंग्स टुगेदर। प्रोफेशनलिज्म मतलब सोचो, प्रोफेशनलिज्म का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर सोचो कि एक डॉक्टर है, उसका एक एनिमी को मतलब उसका अगर तबीयत खराब हो गया तो वाइलेट द डॉक्टर, वो अगर डॉक्टर मतलब मेडिकल में है, उसका एनिमी भी आ गया, तो बीइंग प्रोफेशनल आपको नहीं सोचना है कि वो मेरा एनिमी है मैं इसको मार दूंगा, नहीं, बीइंग ए डॉक्टर यू हैव टू ट्रीट देम, ठीक है, आपको उसको ट्रीट करना है, फिर वो अच्छा होने के बाद आप उसको पर्सनली मार दो चलेगा, बस उसी को बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। लोग क्या होते हैं, मतलब अपना काम को और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। अगर अपना काम को, पर्सनल लाइफ को अगर आप सेपरेट रखोगे, इन दोनों चीजों को अगर आप नहीं मिलाओगे, प्रोफेशनलिज्म फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लिव ए हैप्पी लाइफ, ठीक है, मतलब लाइफ मतलब आपके काम में भी पर्सनल में भी आप हैप्पी रहोगे। बट अगर आप प्रोफेशनलिज्म नहीं रहोगे, दोनों को एक साथ मिलाओगे, तो क्या होगा, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए डिफरेंट काइंड ऑफ हर्डल्स टू योर लाइफ, बोथ टू योर पर्सनल लाइफ एंड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। सो वो है कि नहीं उन लोगों के पास, वो भी देखते हैं, है कि नहीं, दे आर ट्रस्ट वर्दी और नॉट, क्योंकि अगर हम उनको सीक्रेट बोलेंगे, हम उनको कुछ करने के लिए बोलेंगे, वो ट्रस्ट वर्दी मतलब वो हमारे चीजों को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज आल्सो मैटर। मोटिवेटिंग, वो लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं, क्योंकि ले लो कि अगर ऐसा हम एम्प्लॉय को ला लें जो कि कितना भी कुछ कर लो उन लोगों के लिए, वो लोग मोटिवेट नहीं होते, तो क्या होगा, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब जब ग्रो होता है, जब जब डेवलपमेंट होता है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा मोटिवेट करते हैं, तो अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं होगा, है कि नहीं। तो मोटिवेटिंग, ये सारे चीजों को हम बोलते हैं क्या, द एम्प्लॉय में आता है कि नहीं, कि हमारे एम्प्लॉय कैसे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल, एवरीथिंग कैसा है, बस वो चीजें ही हमारे, क्योंकि यही है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें नॉट ओनली एम्प्लॉय का मतलब आप ये मत समझो कि ओनली सर्वेंट, बट जो मैंने बोला कि टॉप लेवल में, मिडिल में, लोअर में सारे के सारे सर्वेंट ही हैं, सारे के सारे एम्प्लॉय ही हैं, है कि नहीं। तो ये सब इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उन लोगों के एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके साथ बिजनेस कंसिस्टेंटली चलता है और जिसको बिजनेस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, ओके। वैसा है ना कंट्रोल, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम पता चला कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो निकाल दो, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन अस, हमारे हाथ में, क्योंकि हमें चाहिए कि ऐसा आदमी हमें कंपनी में नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो निकाल दो, सो दैट इज इन आवर कंट्रोल। ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाल सकते, ऐसा है क्या, नहीं, हम निकाल सकते, तो इसलिए बोलते हैं दे आर विद इन आवर कंट्रोल, ओके, क्लियर हो गया। फिर एम्प्लॉय आ गया समझ में, एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना गुडविल और ब्रांड नेम। जो मैंने बोला कि स्टूडेंट्स, गुडविल और ब्रांड नेम मतलब क्या आता है, गुडविल मतलब योर गुड नेम इन द मार्केट, ये मतलब जनरल टर्म है, उसको अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो गुडविल का मीनिंग अलग रहता है कि नहीं, बस वही रहता है, गुड नेम इन द मार्केट, मार्केट में आपका गुड नेम क्या है, और जिसको हम सिंगल वर्ड में बोलेंगे कि रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन इन द मार्केट में आपका रेपुटेशन क्या है। सो आपका रेपुटेशन डेफिनेटली डिपेंड करता है अपना ओन एक्टिविटीज के ऊपर, है कि नहीं। इफ यू कैन फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स,
ओके ऑब्जेक्टिव मतलब अगर आप अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए, ज्यादा प्रॉफिट अर्न किए, है कि नहीं, वो प्रॉफिट से आप लोगों ने सोशल बेनिफिट्स किया, ओके नहीं, सोशल बेनिफिट मतलब सोशल डेवलपमेंट, फ्री में चीजें देना, ये सब ने किया, ठीक है, और वही प्रॉफिट से आपने ग्रोथ किया, आपने एक्सपांड किया बिजनेस को, है कि नहीं, बिजनेस को एक्सपांड किया आपने, गवर्नमेंट, आप सेल्फ रिलायंट बने, है कि नहीं, सेल्फ रिलायंस बने, और नहीं तो जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर, अब आप आज के टाइम में, है कि नहीं, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, हर चीज के ऊपर दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं बनना है, अपने आप में कुछ क्या कर सकते हो, दैट इज डिपेंड। सो अगर आप आत्मनिर्भर बन पाए, क्लियर, तो ये जो सारे चीजें है ना, दैट इज अगर आप ये सारे चीजें अच्छे से कर पाए तभी आपका गुड नेम आएगा मार्केट में, है कि नहीं, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दिए, है कि नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट, इफ यू कैन सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ओके, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी प्रोडक्ट भी चाहिए, एक ही प्रोडक्ट देके आप नहीं रह सकते, ओके, और क्या है कि रीजनेबल प्राइस, ओके, रीजनेबल प्राइस, कस्टमर ग्रीवेंस सॉल्व, ग्रीवेंस मतलब कस्टमर्स को जो जो कंप्लेन होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीवेंस, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ग्रीवेंस मतलब कंप्लेन, कस्टमर्स का जो कंप्लेन होता है वो लोग अगर आप सॉल्व करते हो तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो आपके ऊपर बिलीव करेगा, वो आपको फॉलो करेगा, अगर आप उसके जो ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं करोगे तो क्या होगा, वो लोग आपको सेटिस्फाई, वो अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो फिर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये जो सारे चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली योर गुड नेम, योर ब्रांड इमेज विल डेफिनेटली ग्रो अप, अदरवाइज यू फेल डाउन, ठीक है, सो ये सब चीजें भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है और हम ये चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमें पता चल रहा है कि हमारा नाम अच्छे कंपनी में मतलब मार्केट में अच्छा नहीं है, सो वी कैन डू गुड थिंग्स टू मेक आवर नेम इन द मार्केट, ओके क्लियर, तो दैट इज गुडविल, ओके, देन नेक्स्ट और क्या है, और है अपना डिपार्टमेंट, जैसे कि आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, है कि नहीं, सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, ओके, कोऑर्डिनेटेड वर्क, सब जो काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे के ऊपर एक के साथ एक इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अगर आप ले लो कि क्या है, ले लो पहले ले लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, है कि नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स के साथ अपना आएगा फाइनेंस, ओके, देन परचेज डिपार्टमेंट, परचेज के बाद आता है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है कि नहीं, प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट ले लो, ये नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप कोई भी किस्म लिख सकते हो, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद आता है सेलिंग, है कि नहीं, सेलिंग करना जिसको हम बोलते हैं सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक ही रहता है, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपना रहता है, फिर उसके बाद रहता है हमारा प्रमोशन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रमोशन, और जिसको बोलते हैं हम क्या, मार्केटिंग, क्लियर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के बाद हमारा और क्या रहता है, और रहता है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है, क्लियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लोगों की मतलब लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस फीडबैक को लेके कंपनी को बोलते हैं कि सर हमें ये करना है, तो ये जो सारे हैं ना इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक मतलब हर कोई एक दूसरे के काम के ऊपर मतलब इंपैक्टेड होता है और दूसरों को इंपैक्ट करता है, जब भी कोई एक पॉलिसी आता है, जब भी कोई एक प्रोडक्शन, जैसे कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, दैट इज डेफिनेटली डिपेंड अपॉन योर लास्ट ईयर सेलिंग, लास्ट ईयर अपना कितना सेल हुआ, ये साल में आपको उतना प्रोडक्शन करना है ऑब्वियसली, और थोड़ा मिला के करना है, ठीक है, एंड आप कितना प्रोडक्शन करोगे दैट इज डेफिनेटली डिपेंड अपॉन योर फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो सबका हेड होता है कि नहीं, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट को भी पैसा चाहिए, प्रोडक्ट परचेज के लिए भी पैसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सबके ऊपर कंट्रोल रखता है कि हाँ आपको कितना कितना पैसा चाहिए बोलो, उसके हिसाब से हम पैसा लाएंगे और आपको में खर्चा करेंगे, ठीक है, सो आवर डिपार्टमेंट, इसमें होता है डिपार्टमेंट, क्लियर, सो ये जो सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने कंपनी में है, ये सारे अपने कंट्रोल में है, और ये सारे को लेके ही अपना कंपनी और बिजनेस आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, फेल डाउन होता है, डेवलप होता है, जो भी, दैट इज डिपेंड अपॉन द एक्टिविटीज, द कोऑर्डिनेटेड, द इंटरडिपेंडेंस एक्टिविटी ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स, ओके क्लियर, एंड देन द फाइनल वन जो कि अपना मैनेजमेंट टीम, ये हमें मतलब समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट टीम आपको मतलब पता है क्या, द लेवल्स ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने जो भी पढ़ाया था, है कि नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ओके, और लोअर लेवल, ये जो सारे के सारे लेवल में जितने भी अपने क्या है मैनेजर्स हैं, कौन है, हर कोई है, मैनेजर है, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेटर है, ओके, मैनेजर, जो कि हमने पता है कि टॉप मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ हुम, टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ आवर ओनर, ओके, आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आवर चेयरमैन, है कि नहीं, प्रेसिडेंट, ये सब लोगों को लेके बना है। अपना मिडिल लेवल दैट इज कंसिस्ट ऑफ आवर मैनेजर, है कि नहीं, मैनेजर, एरिया मैनेजर, एक एक एरिया का मैनेजर, है कि नहीं, सेक्शन ऑफिसर, ओके। फिर लोअर लेवल में आता है क्या, लोअर लेवल में आपका आता है जो कि है सुपरवाइजर, है कि नहीं, अपना सुपरवाइजर, देन सुपरवाइजर, और कौन कौन है, कीमैन, है कि नहीं, इंस्पेक्टर, ये जो सारे लोग हैं, बस इसी को हम बोलते हैं अपना जो मैनेजमेंट टीम, क्योंकि ये लोगों के हिसाब से ही अपना कंपनी चलता है। कंपनी अच्छा बुरा ग्रो करेगा, डाउन होगा, मतलब अच्छा नाम करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन देम एंड देयर एक्टिविटी, देयर एटीट्यूड एंड एवरीथिंग, जिसको कि हम देखते हैं किसमें, एम्प्लॉय में, हम उनको कंट्रोल करते हैं। बट मैनेजमेंट टीम मतलब ये जो पूरा अपना जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, पूरा मैनेजमेंट का लेवल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सारे के सारे उनके एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है अपनी कंपनी में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, काम कैसा होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये है स्टूडेंट्स अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट, इसी के ऊपर हम मतलब हम टोटल हमारा कंट्रोल है, ठीक है। बट फिर भी ये लोगों के हिसाब से ही, इसकी ये चीजों के हिसाब से ही हम अपना कंपनी में ग्रोथ डेवलपमेंट, हम कंपनी में जो भी पा सकते हैं, डेफिनेटली द कंबाइंड एफर्ट ऑफ दोज थिंग्स, है कि नहीं, ये लोग कुछ कुछ एफर्ट डालते हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, देन ओनली कंपनी और बिजनेस कुछ अचीव कर पाता है, अलोंग विद द हेल्प ऑफ अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, क्लियर। सो जो अदर एनवायरमेंटल फैक्टर है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, ये इसको हम 3 क्लास कर देते हैं, आज पहला क्लास हो गया, that is the internal environment and introduction. Then in the second class we are going to discuss about the micro factor, and in the third class we will different clear और discuss about the macro factor, क्योंकि macro factor में एक क्लास में नहीं होगा, macro factor definitely 2 क्लास लग सकता है, ठीक है। तो accordingly we can discuss. Okay, so thank you all for your kind presence and patience to listen to us, and hope to see you in the next class with a good concept. Thank you.